Hi all, good evening. Namaste. How are you all? Good evening, sir. Good evening. So, Good evening, sir. Good evening, sir. just close your eyes. We'll बोल take a रही long breath in and breathe out. पतंजलि वाला पढ़ेंगे बोलेंगे क्या श्लोक Take another long breath in and breathe out. Please mute yourself. Lot of background noise is coming. Mute all yourself. Now we'll breathe in and we'll chant Om. Relax completely. Now we'll chant Gayatri Mantra. Someone is unmute. Mute yourself. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Mahamrutyunjay Mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityur Mokshe Yamamrutam. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sah Viryam Karvavahe Tejasvi Namaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amrutagamayam. Hari Om. Yogena Chittasya Padena Vacha Malam Sarirasya Cha Vaidyakenam Yopaakarotum Pravaram Munina Patanjali Pranjali Ranutosmi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gururevo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Matrudevo Bhavaha. Om Pitrudevo Bhavaha. Om Acharya Devo Bhavaha. Om Atiti Devo Bhavaha. Go down. माता पिता गुरु अतिथि धरती माता सबको प्रणाम करेंगे, पंचभूतों को प्रणाम करेंगे. All the textures, Veda, Vedanta, Upanishad, whatever your textures, whatever your guru, whatever your dharma granth, to all will do pranam. Will be in the path of dharma. Will do seva, sadhana, satsang, and achieve the ultimate goal of yoga, that is moksha, mumukshatva, means from the birth and death, from that cycle will come out and our individual consciousness will merge to the supreme consciousness. Yeah. Okay, now we'll start. Okay, what's today's topic? आज का टॉपिक क्या है? लाइफ मैनेजमेंट. Life management. Okay, life management. And yoga is not just a half an hour exercise and all, because all session is of yoga, ultimate goal is balance. Balancing Vata Pitta Kapha, balancing Hatha Yoga, means Surya Nadi, Chandra Nadi, balance of that, balancing lifestyle, okay, balancing everything in life. And even will mentally also will be balanced in good time, bad time, will accept that and will go forward with a positive aspect. Okay, we'll do better in failure. When we are successful, we have to try to be consistent in that position. In that way, we have to work hard. We have to apply new techniques to get into the remains in success rate, and continuously we have to maintain, and we have to accept the change. Change is the ultimate truth in life. So yoga's ultimate goal for us is it leads us to a
healthy mind, like physically well-being, mentally well-being, and spiritually well-being. So when yoga is nothing but when we are aligning body, mind, breath, any of our actions that we are aligning with the breath, we are bringing balance in that, and that is nothing but yoga. Okay, so we have to balance rajo, tamo, okay, sattvic, that all also will be there in three guna wise. So everywhere we have to be balanced. So now I want to know the view from you, how we can implement in our day-to-day life for a betterment, for a happy and healthy life. Okay, so how in lifestyle we can implement? I want to know one by one. Anyone raise hand and can give their view so that we can discuss further. Anyone wants to raise hand? हमारा जीवन में आधा घंटा नहीं है योग. योग एक जीवन पद्धति है. तो उसको कैसे हम, हमारा क्या व्यू है, कैसे हम उसको करेंगे so that हम समझ पाएंगे आज का सब्जेक्ट की. नहीं, एक आधा घंटा या एक घंटा का कुछ कर लिया, जिम का तरह खत्म हो गया, वैसा नहीं है. एक जीवन शैली है, एक पद्धति है. वो कैसे आप कुछ उदाहरण के तरीके से मुझे समझाइए. यू कैन शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस थ्रू व्हिच वी कैन गो फर्दर. ओके, कौन बता सकता है योग सिर्फ एक आधा घंटा में कुछ आसना कर लिया वो उससे मेरा योगा हो गया, जिम में जैसे करते हैं? नहीं. भूमिका जी, हाँ बोलिए, कैसे हम हमारे जीवन शैली में इसको एकोमोडेट करेंगे? यस। तो योग में जब हम प्रवेश करते हैं और जब हम योगा मैट पे होते हैं तो वो जो आधा घंटा या एक घंटा हम योग में देते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं कि सर्टन आसनास वी टेंड टू होल्ड फॉर सर्टन मिनट्स। तो जब हम डिफिकल्ट पोजेस होते हैं और जब हम उसको होल्ड करते हैं तो वो हमारा विल पावर को एनहांस करता है। योगा में सिर्फ आसना नहीं आते, योगा में हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, मेडिटेशन भी होता है, तो वो हमारी अवेयरनेस को फॉर्म करता है। अब हमने एक घंटा जो प्रैक्टिस कर लिया उसको हम डेली लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो अभी मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें जो माइंडफुलनेस है वो योग से ही आती है। योग हमें साइड बाय साइड कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी भी अवेयरनेस देता है। सो फॉर मी योगा इज नॉट समथिंग दैट यू डू ऑन योर योगा मैट, बट इट्स बियॉन्ड द मैट। बहुत बढ़िया, क्योंकि योगा में यम और नियम भी होते हैं, सो ऑन दैट वे। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम. थैंक यू। या एनीवन एल्स? थैंक यू मैम. थैंक यू भूमिका जी, बहुत बढ़िया बोलो. एनीवन एल्स जो बहुत नए हैं, योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या कुछ आपको पता है? हाँ मैम, बोलिए प्रश्न में. मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई प्रैक्टिस. सॉरी मैम. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. सर जैसे कि मुझे सियाटिका का पेन बहुत लंबे टाइम. नहीं नहीं, आपका वॉइस मेरे लिए अप डाउन हो रहा है, क्लैरिटी उतना नहीं है. आई डोंट नो क्या इश्यू है. आई डोंट. ओके, तो सर सियाटिका का पेन था मुझे बहुत लंबे टाइम तक, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और वहां पे मतलब मैंने वीडियोस सर्च की और ऋषिकेश के किसी गुरु से मैंने देखा, तो वहां से मेरा जो पेन है वो कम्प्लीटली चला गया. और तब मेरा इंटरेस्ट बना योगा में. देन आई कम टू नो कि योगा सिर्फ आप पोजेस नहीं करते हो, वो आपकी पूरी बॉडी को, मतलब मैं बोलूंगी कि मेरे बॉडी का पेन धीरे धीरे चला गया. और जैसे आपका अगर कोई भी इश्यू है लाइफ में, लाइक आपको स्ट्रेस है, तो अगर आप योगा जानते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इट विल गिव यू पीस फॉर लाइक. आपका वॉइस अप डाउन हो रहा है मैम. ओके, आप अभी आ रहा है आपको सर? हाँ अभी ठीक है. हाँ जी. तो योगा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के हर पार्ट में है. मतलब अगर आपको गुस्सा आता है तो आप मेडिटेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं. आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको उसकी शिक्षा दे सकते हैं. तो आप ये बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है मैम, वो वही बोलना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. डिसीज रिलेटेड में भी वी कैन टेक समथिंग इन मतलब होलिस्टिक वे. योगा इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, राइट? वी आर बैलेंसिंग एवरीथिंग. आप जैसे बोले मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, एंड अल्टीमेट इज माइंड, बॉडी, soul, breath, alignment, because
yoga is not a 1 hour yoga gives you premium petrol of 24 hours. बहुत बढ़िया मैम. Yes. So as you told मैम, बहुत बढ़िया तरीके से बताएं कि हाफ एन आवर एंड 1 आवर जो हम डे को पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करते हैं. एक्सक्यूज मी धर सर। हाँ मैम बोलिए. सर योगा पोस्चर्स और ब्रीदिंग और मेडिटेशन तो बहुत लास्ट के स्टेप्स हैं। पहले तो हमें सच बोलना, अहिंसा, स्वच्छ रहना, मानसिक स्वच्छता, फिजिकल स्वच्छता, ये सब बेसिक स्टेप्स हैं जी. तो जिनको हमें इसको फॉलो इसको यमा करना है। नियमा भी बोलते हैं ना. जी, यमा नियमा. तो एक बेसिक ले पर्सन इनको अगर फॉलो कर ले तो सबसे पहले उनकी योग की शुरुआत हो जाती है। बहुत बढ़िया मैम. मस्त. बहुत ये अच्छा बोल. सब अगर यही जो है फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं जिससे कि कोई इंसान मेडिटेशन के लिए बैठ सकता है। मेडिटेशन कुछ करने की क्रिया नहीं है, मेडिटेशन तो एक प्रोसेस है जो होने लगता है अगर इन सब चीजों में हमारे स्थिरता और संयम और कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हम आसन करने के लिए भी बैठ सकते हैं, हम ब्रीदिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, और फिर तो मेडिटेशन तो एक प्रोसेस है जो अपने आप हो जाएगा, ये सब बेस अगर स्ट्रांग बन जाएगा तो। अपने आप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे होगा. गाइडेंस के साथ, जी हाँ सर, जैसे आपकी हम लोग. गाइडेंस से। हाँ मैन, आप यमा नियमा पालन करते हैं. जब आप पद्धति के हिसाब से एक एक स्टेप लाते हैं, तो अगर आप अष्टांग योगा के बारे में सुने होंगे, आज आप लोग इनडायरेक्टली उसमें कुछ चीजें बोल दिए ऑलरेडी. यमा नियमा बहिरंगा में, उसके बाद आसना, आसना के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, यमा नियमा सोशल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स. फिर जो आप बोले अहिंसा, सच बोलना, ओके, सत्य, किसी का क्रेडिट नहीं चोरी करना, अस्तेय. फिर कोई बोले कि अंदर से बाहर से, मन और शरीर से साफ रहना, मन से विचारों से साफ रहना, तो स्वच्छता में आ गया, शौच में आ गया. तो उसके बाद अगर आप जैसे कि ये करते हो, कुछ आसना करते हो, तो वो आपका प्राणमय कोश, उसका ऊपर आता है अन्नमय कोश. ब्रीदिंग एंड ऑल सब सेकंड लेयर में आता है, लेकिन पहला जो हमारा शरीर है, जो हड्डी है, बोन, ओके, वट एवर आवर फिजिकल बॉडी, ओके, जो आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, जो जो शरीर है, वो अन्नमय कोश, अन्न से बनता है, फिजिकल से. तो आप कैसे खाना खाते हो, वैसा आपका शरीर बनता है, और वैसा आपका मन भी बनता है. एंड प्राणायाम से, ब्रेथ रेगुलेशन से आपका प्राणमय कोश को वो लिंक करता है. बिकॉज योगा इज अगेन टू रिलेट टू ईच टॉपिक्स. ओके, वो योग से जुड़ना है, एंड योग हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं. एंड योग क्या है? माइंड बॉडी सोल सबका मीन्स सबका बैलेंसिंग, सबका अलाइनमेंट. अगर मैं एक सिंपल जिम में करता हूँ, दैट इज ओनली फॉर फिजिकल एस्पेक्ट. यहाँ इट इज नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स ए फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, एज वेल एज सोशल वेलबींग. आपका एक व्यक्ति निर्माण होगा, उससे आप एक समाज का निर्माण करोगे, वो समाज आपको एक बेटर लाइफ में लेके जाएगा. सो दैट इज नॉट व्हाट सत्वा या सत्य युग का प्रारंभ होगा. कब होगा? जब हम लोग सब डिसिप्लिन में रहेंगे, या स्पिरिचुअल वेलबींग ऑल्सो. करेक्ट मैम. तो आप अगर आसन करते हो, तो फिजिकल कोसा, पंचकोसा जो बोला था, उसमें पहला है अन्नमय कोसा, उसमें करता है. प्राणमय कोसा, वो कौन सा चीज को एक्टिवेट करता है? अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हो, तब प्राणमय कोश एक्टिवेट होता है. तो इनहेलेशन, एक्सलेशन, जैसे आज एक जन बोल रहे थे, सांसों पे ध्यान देना, अटेंशन करना, उसको ध्यान देते हुए कोई क्रिया करना, एक्टिविटी करना. आज कोई एक बोल रहे थे माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग. सो आप अगर एक नियम के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ जब आप करते हो लाइफ में, आप में बहुत चेंजेस आते हैं. एंड योगा आधा घंटा का नहीं है, एक जीवन शैली, एक होलिस्टिक वे, एक अप्रोच है, एक जीवन पद्धति है. फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह कौन से टाइम पे उठूंगा, वो डिसाइड करता है मेरा होल डे. मैं सुबह 9-10 बजे उठूंगा. डू यू थिंक आई कैन स्टार्ट डे पॉजिटिव? मैं सुबह 8-9 बजे उठूंगा. इज इट योगिक लाइफ? थोड़ा जवाब देना No, पड़ेगा sir. सबको. No, sir. No, sir. नो सर। तो क्या करना है? Sir, early morning उठना अर्ली होता है. राइज। तो वो ऑस्पिशियस टाइम अर्ली मॉर्निंग जो
सूर्योदय के 2 घंटा पहले या ब्रह्म बहुत मुहूर्त सर, ब्रह्म मुहूर्त। बहुत बढ़िया, बेस्ट। तो हमारा शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को देव समय कहा गया है, सायंकाल को एक देव समय कहा गया, बिकॉज स्पिरिचुअली पावर रहता है, एयर एलिमेंट में वो तत्व रहता है। सो हम अगर उस टाइम को मिस करेंगे, उस टाइम में सोएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल में सोएंगे, घर में दरिद्रता आता है शाम को सोने से। सुबह जो लेट सोते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं लाइफ में। जितने कामयाब पीपल, जितने डिसिप्लिन पीपल एनी फील्ड में आप देखो, वो सब अर्ली मॉर्निंग में उठने वाले हैं। जितने कामयाब लोग देखो, द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन्स आर ओनली द सक्सेसफुल पर्सन्स, क्योंकि वो लोग ये यमा नियमा जो 8 चीजें हैं, यमा नियमा आसना, ओके, प्राणायामा प्रत्याहारा, 5 बहिरंगा 3 अंतरंगा, वो क्या है, धारणा ध्यान समाधि। जब ये 8 चीज हम धीरे धीरे अप्लाई करने लगते हैं लाइफ में, हमें बहुत डिसिप्लिन मिल जाए। तो आप बोलोगे सर ये 8 लिम्स जो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने बताया, तो अंतरंग क्या है, बहिरंग। बहिरंग मीन्स एक्सटर्नली व्हेन हम लोग काम करते हैं, जैसे कि शौच है, बाहर सोसाइटी से कैसे जी रहे हैं, यमा नियमा। जैसे हम लोग एक आसन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा कौन सा कोष को लिंक करता है, अन्नमय कोष, फिजिकल बॉडी को, फिजिकल लेयर को। नेक्स्ट प्राणिक लेयर, प्राणिक लेयर जो है प्राणायाम से करते हो, जब सांसों पे ध्यान देते हैं, जिसे आना पाना करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कोई भी नाड़ी शोध प्राणायाम करते हैं, नर्व्स का क्लींसिंग होता है। एंड वो प्राण शक्ति जो प्राणायाम से, प्राण का आयम इज प्राणायाम, एक्सपेंशन ऑफ ब्रीथ इज नथिंग बट योर प्राणायाम। सो वो क्या, आपका प्राणमय कोष को एक्टिवेट करता है, उसमें आपका सटल एनर्जी बोलते हैं जिसको, सूक्ष्म शक्ति का प्रवाह होता है। एंड द चक्र है, ओके, नाड़ियों में एनर्जी फ्लो होता है। तो उसमें जब आप क्लींसिंग करोगे, नाड़ी शोधन वगैरह करोगे, वो प्राणायाम। आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि महर्षि वो बोलते हैं। तो ये क्या है, वो अगेन फिजिकल एस्पेक्ट के लिए, बट हाँ उसको जब हम हर एक्शन को सांस के साथ जोड़ देंगे, व्हेन ईच आसना विल डू विद द अलाइनमेंट ऑफ ब्रीदिंग, कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है। एक सूर्य नमस्कार का उदाहरण देता हूँ। सपोज 12 स्टेप है, मैं नमस्कार आसन में न्यूट्रल हूँ, जब मैं हस्त उत्तान आसन कर रहा हूँ, पीछे ऐसे जा रहे हैं, सांस भर के पीछे जा रहा हूँ। व्हेन आई एम बेंडिंग डाउन टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जब मैं मैट के तरफ झुक रहा हूँ, तब क्या करना है, मुझे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है। तो आप ये बोल सकते हो सर किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का पेट में दर्द है, किसी का बीपी है, कुछ स्पाइन में सर्जरी हुआ, दे कैन अवॉइड। लेकिन नॉर्मली बाकी सबके लिए, जिनका हेल्थ कंडीशन है उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन पहला हमारा रूल, एक नॉर्मल अगर बेसिक स्टेप में मैं जाऊं, आप लोग वाईबी कोर्स में आए हो, इट्स ए 36 आवर्स योगा वॉलंटियर कोर्स, पहला स्टेप है टीचर के जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सो इसमें आपको ये सोचना है, पहले मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, और सेकंड स्टेप में मैं सोचूंगा वही स्टेप्स करता हूँ सांसों को ध्यान देकर। पहले ऑटोमेटिक हो रहा था, लेकिन उसको मैं और अच्छे से सही तरीके से करना है, सांसों को ध्यान दूंगा। उसको संस्कृत में बोलते हैं रेचका पूरका कुंभका। जो नए हैं उनको टफ लगेगा, सो इसलिए बोलो सांसों को भरना, सांसों को रोकना और सांसों को छोड़ना। इनहेलेशन ऑफ द ब्रेथ, ओके, इनहेलेशन, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, होल्डिंग द ब्रेथ एंड एक्सहेलेशन ऑफ द ब्रेथ। वो तीनों अगर हम फॉलो करेंगे होल आसन में, पीछे जाने के टाइम सांस लेंगे, आगे झुकने के टाइम सांस छोड़ेंगे। ओके, एक अष्टांग नमस्कार आता है, उसी में ओनली हम लोग को क्या करना है, दंडासन में सांस रोकेंगे, अष्टांग में सांस छोड़ के हुए जाएंगे, फिर भुजंग में सांस लेके जाएंगे। सो हम जब ऐसा पूरा 12 स्टेप्स को विथ ब्रीद इन विथ माइंडफुलनेस के साथ करेंगे, आपका सटल एनर्जी में, चक्रों में एक्टिवेशन होगा। एक एक पोर्शन में आप ध्यान दे सकते हो, एंड वो आपका शरीर को लचीलापन, फ्लेक्सिबल बनाता है, ट्रंक मूवमेंट होता है, साइड बेंडिंग्स होता है, किससे, चंद्र नमस्कार से भी होता है, और आप त्रिकोणासन की बोल लीजिए वो सबसे, तो आपका एक एक जगह रिलैक्स होता है। और आप सूक्ष्म व्यायाम जब करते हो, वार्म अपस, उसको एक क्लास भी है आपका, संचलन बोलते हैं। तो उसमें आप क्या है, नेक में रोटेट करोगे, नेक में अप डाउन करोगे, ओके, आंखों का आईबॉल मूवमेंट करोगे, ओके, हेड का प्रेस करेंगे, फिर कंधों का स्कंद शक्ति विकास का क्रिया करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट है, पूर्ण भुज शक्ति विकास का क्रिया करेंगे, फिर जानु शक्ति विकास का, जानु मीन्स नी का रोटेशन करेंगे, एंकल रोटेशंस करेंगे, ओके। तब जब ये सब करेंगे, हमारा शरीर को हम मंत्र उच्चारण से स्पिरिचुअली एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट की। मंत्र उच्चारण हो गया, ओम का उच्चारण आप जानते हो, ओम ऑल्सो वेरी पावरफुल बीज मंत्र, जो सृष्टि का एक बीज मंत्र है।
उसका जब आप चैंट करते हो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, आपका पॉजिटिव वाइब्स, माइंड में पॉजिटिव वेव्स का जनरेशन होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा वेव्स, मन शांत करना, वो सब शुरू होता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। उसके बाद मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण से आपका ईच ऑर्गन में कंपन या वाइब्रेशन होता है, एक सही तरीके से एक रिदम से हम चांट करते हैं तो समर्पण भाव आता है। ओके, हम लोग का एक पॉजिटिव फील आता है कि यस आई एम स्टार्टिंग वन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, या समथिंग आई एम सरेंडरिंग माई साधना एंड एवरीथिंग टू माई गुरु और गॉड। उसके बाद आप क्या करते हो, सूक्ष्म व्यायाम करते हो। सूक्ष्म व्यायाम में आपका क्या करते हो, हर जॉइंट का मोबिलिटी, हर जॉइंट को खोल देते हो और यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर हायर एक्सरसाइजेस, वो कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट उसके बाद सूर्य नमस्कार या आसनों में, या मॉडरेट एक्सरसाइजेस जिसको हम लोग योगिक जॉगिंग बोलते हैं, वो सब करेंगे। सिटिंग पोस्चर्स करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे। जो अगर आप लोग जो पहले से अटेंड कर चुके, आज नए नहीं हो, वो लोग को आइडिया होगा थोड़ा कि हम आसन कैसे करते हैं। स्टैंडिंग का कुछ करते हैं, सिटिंग का कुछ करते हैं, सुपाइन में मतलब सुपाइन और प्रोन। प्रोन मतलब पेट में, सुपाइन मतलब पीठ के बल लेट के। बहुत सारे आसना है, वो आपका बॉडी का ईच पोर्शन को एक्टिव करेगा। डिसीज रिलेटेड आसन भी है, जैसे एक एक आपका कल टीचर आप बन रहे हैं, एक डायबिटिक पेशेंट आया, उससे मंडूकासन करवाएंगे। पेनक्रियस दबेगा, पेट में ऐसे हाथों को मुट्ठी बना के पेट को दबा के वज्रासन में बैठते हुए आगे झुकेंगे, तो वो आपका मंडूकासन है। तो ये सब जैसे हम एक एक आसन करेंगे, डिसीज रिलेटेड भी आपको हेल्प करेगा और आपका अन्नमय कोश को इम्पेक्ट करेगा। उसके बाद हम चारों आसन करने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। शवासन की कुछ में 4-5 मिनट लेट जाएंगे। शवासन क्या है, कॉर्स पोज, मतलब डायरेक्ट मैट पे पूरा वजन डाल देंगे, दोनों हाथों को सीलिंग फेस करके पूरा पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे, मीन्स विल मेक आवर फीट्स अपार्ट, बोथ palms facing ceiling, and slowly we are like relaxing whole body, what we get whole strength। उससे आपका क्या है, मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। फिर मैं जैसे बोल रहा था चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसका भी मीनिंग है। जब आप बहुत थके हो, चंद्र भेदी प्राणायाम, when you are very tired you have to activate your left nostril, that is nothing but lunar energy। जब आपका कुछ एक्टिवनेस करना है, कुछ वर्क करना है, कुछ खेलना है, यू आर गोइंग फॉर फूड एंड ऑल, तो आपका जठराग्नि के लिए सूर्य एनर्जी और हीटनेस चाहिए, सोलर पावर, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों है। जब दोनों को हम बैलेंस करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में जब एनर्जी फ्लो होता है, दैट इज मेडिटेशन। ओके, सो प्राणायाम जब करते हैं, प्राण का आयाम, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट और इट विल एक्टिवेट योर प्राणमय कोश। फिर मनोमय कोश, जब आप, एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर एक बार ये चंद्र वाला और सूर्य वाला वापस बताएंगे, चंद्र नमस्कार कब करते हैं और सूर्य नमस्कार कब करते हैं? नहीं, दोनों आप एज ए पार्ट कर सकते हैं, लेकिन चंद सूर्य नमस्कार जैसे एक आपने बताया ना वो शीतलता के लिए और नहीं, वो सूर्य नमस्कार नहीं बोला, चंद्र भेदी बोला, सूर्य हाँ जी, भेदी बोला। हाँ एक बार ये रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, यस, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ओके। तो लेफ्ट वाले को ईड़ा बोलते हैं, राइट वाले को पिंगला बोलते हैं। योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज lunar energy, right one is solar energy। Sanskrit name of that ida pingala, and in between is sushumna। These are the 3 important nadis out of 72,000 nadis। उतना एक ध्यान रखेंगे पहले। दूसरा, ये आपको शीतलता देगा जब आप राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से लेंगे, इसको चंद्र प्राणायाम बोलते हैं। और चंद्र भेदी प्राणायाम किसको बोलते हैं, जब आप लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ोगे एंड फिर से लेफ्ट से लेके राइट छोड़ोगे, उसको चंद्र भेदी प्राणायाम बोलते हैं। ओके, सो एन का शेप लेंगे, वन वे। अनुलोम विलोम में मैं दोनों साइड में ले रहा हूँ, मतलब इधर से उधर ले रहा हूँ, उधर से इधर ला रहा हूँ। सो दैट इज 2 वे ट्रैफिक, बट दिस इज 1 वे ट्रैफिक ओनली। लेफ्ट में ले रहा हूँ, राइट में छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट में ले रहा हूँ, उसको चंद्र भेदी प्राणायाम, उससे मन ठंडा होता है। अगर जिनको इंसोमेनिया इश्यू है, नींद आने का प्रॉब्लम है, तो शरीर को ठंड करना है। जिनका बीपी इश्यू है, रोज अगर चंद्र प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, आपका बीपी को कंट्रोल करता है। जिनका ठंड में प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत ज्यादा विंटर है, यू नीड समथिंग, थोड़ा हीटनेस चाहिए, आपका फूड डाइजेशन के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम। ये ओनली सूर्य साइड हुआ।
अगर मैं राइट से लेफ्ट कंटिन्यूस वन साइड में लूंगा सूर्य भेदी, तो वो क्या होगा, उसको एक्टिवेट करेगा। लेकिन फिर भी वात पित्त कफ, शरीर का फिर 3 प्रकृति है। अब वात प्रकृति में कफ प्रकृति है या आपका पित्त प्रकृति है, वो आप नाड़ी का परीक्षा अगर एक आयुर्वैद्य के पास करवाएंगे, okay, if you will go to a ayurvedic doctor and you will ask them to do your nadi pariksha or nerve testing, and they will do little bit basic more testing, and they'll tell you what is your primary sharira tattva. Accordingly, when you are doing the pranayams, you'll get more results. According to your diseases, when you are doing asanas, it will be more helpful. जैसे एक पर्सन है, उनका बीपी है, उनको पूरा नीचे नहीं झुकना है। when they are doing सूर्य नमस्कार and all also, they have to stay at 90 degree. बाकी सबको नीचे झुकना है। जैसे मैं हस्त उत्तान आसना किया, बहुत पीछे जाऊंगा बीपी बढ़ेगा, तो वी हैव टू अवॉइड दैट। सो आपको वो चीजें ध्यान देना है जीवन शैली में और धीरे धीरे करना है। और पतंजलि योग सूत्र में एक बोला है, पहले डिसिप्लिन। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे बोले सुबह उठना, सुबह उठने के लिए पहले दिन अर्ली डिनर खाना है। जब आप सूर्य अस्त के बाद खाना खाते हो, जठर अग्नि वीक हो जाता है, तो शास्त्र विरोधी हो। तो why that is agreed? Because you need some digestive fire to active to digest your food. अगर हल्का फूड खाएंगे शाम को, सूर्य उदय के अंदर खाएंगे, तो आपका क्या होगा, you'll get 3-4 hours to get it digested. तब अगर आप ना शौच कर लिए, बावल एम्प्टी कर लिए, सब कर लिए, एंड आप सोने जा रहे हो, बहुत बहुत नेगेटिव कंटेंट, बहुत एग्रेसिव कंटेंट नहीं देख रहे हो सोने से पहले, बहुत टीडीएस जॉब्स को जो आपको स्टिमुलेट करेगा वैसे अन्न नहीं खाते हो, नॉर्मल खाना खा के, सात्विक आहार खा के हजम होने के बाद पूरा बावेल एम्प्टी करके सोने जाते हो, और सोने से पहले थोड़ा अंधेरा करके रूम को रखते हो, तो क्या होगा, स्लीप हार्मोन जनरेट होता है। उसके वजह से आपका अच्छा क्वालिटी स्लीप आएगा, क्योंकि मेलाटोनिन इज लाइक पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन जनरेट होता है, स्लीप हार्मोन। वो हिंट देता है कि आपको सोने के लिए जाना है, आपको यस मेलाटोनिन, यस आपको सोने के लिए जाना है, वो हिंट देता है बॉडी को। देन विल गेट क्वालिटी स्लीप एंड गोल्डन आवर्स ऑफ स्लीप 10 to 3 के अंदर, कोई भी 4 आवर्स। सो सपोज 10 to 2 हो, नहीं तो मैक्सिमम 11 to 3। उस टाइम में जब आप मेंटली रेस्ट हो, आप पहले ना ब्लू रेस एक्टिवेट करके मेलाटोनिन स्टॉप नहीं करोगे, स्क्रीन और मोबाइल को रात को नहीं देखोगे, और टीवी वगैरह एक टाइम के बाद बंद करके आप ऑफलाइन बुक पढ़ना, वॉकिंग करना, वो सब करके फिर आके सोने जाते हो जब। और अगर हो पाए पाँव में थोड़ा ऑयल अप्लाई करना, नाभि में ऑयल अप्लाई करना, थोड़ा सर के ऊपर 1-2 ड्रॉप डालना, वो सब करके जब आप सोने जाते हो, पूरा पैर अच्छे से धो के, पानी में भी कुछ लोग डुबाते हैं क्योंकि लॉट ऑफ स्ट्रेस विल कम आउट, उसके बाद ऑयल थोड़ा मसाज देते हो, उसके बाद जब सोते हो आपको बहुत बढ़िया गहरी नींद आएगी। क्यों? खाना हजम हो चुका है। आप बहुत नेगेटिव कंटेंट, न्यूज वगैरह, ये वो कुछ बहुत सस्पेंस मूवी जो आपका ब्रेन को एक्टिवेट करे, वो नहीं कर रहे हो। आप ऑफलाइन एक्टिविटी कर रहे हो, नॉट स्क्रीन टाइम। आप वॉकिंग कर रहे हो, कुछ बुक पढ़ रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, वो सब 8 बजे के बाद की, 9, 9:30 के बाद किया कि पूरा बंद कर दिए सब, अंधेरे में थोड़ा देर बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत ये रहता है कि एक्टिव रहता है ब्रेन ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड ऑल, आप थोड़ा देर चंद्र प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, थोड़ा योग निद्रा करेंगे। योग निद्रा भी आपका एक टॉपिक में है। और अनुलोम विलोम, दैट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उससे क्या होता है, आपका माइंड बैलेंस होता है, माइंड पूरा रिलैक्स होता है, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, बहुत सारा बीमारियों को क्लोज कर देता है। एंड when you are doing अनुलोमा विलोमा प्राणायाम, one of the नाड़ी शोधना और नर्व क्लिंस, एनर्जी फ्लो होता है, मन रिलैक्स होता है, then you'll get a very quality sleep। और वो नींद को जब आप पूरा कर लेते हो, next day you are able to get in दिनचर्या, you'll get that दिनचर्या ऋतुचर्या also one topic। आप सही खाना खाए, नॉर्मल खाना खाए जो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, यू आर टेकिंग इट एज फॉर द सीजन। अच्छे से अर्ली डिनर करते हुए, पूरा प्रिपेयर करते हुए, मन को भी एक संकल्प लेना है कि मैं कल सुबह उठूंगा, ब्राह्मी मुहूर्त में उठूंगा, वो मेंटल प्रिपरेशन करके जल्दी सोएंगे। जब सुबह उठेंगे, जिनको वर्क रिलेटेड डिले हो रहा है उनके लिए 11 to 3 का साइकिल लीजिए, बट बाकी सबको तो 10 बजे तक सो ही जाना है। जब आप वो क्वालिटी स्लीप पूरा करते हो, सुबह उठते हो, when you are getting up early morning in Brahmi Muhurta,
आप जब शौच करते हो, जैसे आप बोले मैं बावेल एम्प्टी वगैरह करता हूँ, लेकिन उठने का पहले, उठने से जस्ट इमीडिएटली कराग्रे वसते मंत्र का उच्चारण करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ। ओके, व्हेन आई एम डूइंग सम मंत्र एंड रिचुअल्स, आई एम स्टार्टिंग माय डे विद पॉजिटिव वाइब्स इन द ब्राह्मी मुहूर्त। फिर उषा पान करता हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी को उकड़ू आसन या मलासन में पीता हूँ। तब क्या होता है, थोड़े देर में आपका मल मूत्र सब पूरा अच्छे से क्लीन होके बाहर निकल जाएगा। और वो झूठा मुंह नहीं धोते हुए वो गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम और पॉजिटिव थिंग जो मुंह में है वो अंदर जाएगा तो बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। देन उसके बाद जाके हम हमारा दिनचर्या सब खत्म करके 15-20 मिनट के बाद क्रीम टाइम है, हो 4 to 6 एंड ऑल आर वेरी गुड टाइम, स्पिरिचुअल टाइम। उस समय में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छा रिसर्च, पढ़ाई का चीजें, आपका मंत्र उच्चारण का, आसनों का, सूर्य नमस्कार का, मेडिटेशन का बहुत अच्छा टाइम है। क्यों? ऑक्सीजन क्वालिटी अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, उस टाइम में नेचर में डिस्टर्बेंसेस कम रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका बावेल एम्प्टी होगा। बिकॉज अथ योगा अनुशासनम, जब आप योगा के पाथ में आता हो, पहले इट स्टार्ट्स विथ डिसिप्लिन। नाउ एंड हियर द डिसिप्लिन बिगिंस, एंड दैट इज अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन, जब आप अनुशासन में रहते हो, जब आप मन को शांत करते हो, आपका शरीर को प्रस्तुत करते हो पहले दिन से, तब जाकर नेक्स्ट डे अच्छा होता है। और जब आप ये सब चीजें करके दिन का शुरुआत करते हो, आपका मन अच्छा रहता है, बैलेंस रहता है। आप तब जब अन्न लेते हो सुबह नाश्ते में, बहुत सिंपल डाइट लेते हो। क्या है? बहुत स्टिमुलेटेड, बहुत अनइजी फूड, बहुत सारा राजसिक तामसिक अन्न नहीं खाते, बहुत सिंपल डाइट खाते हो, बहुत अच्छा करते हो। कुछ लोग दिल स्टार्ट विथ सम लीफ जूसेस, कुछ हल्का फ्रूट जूसेस, वो सब करते हो। अन्न में ना बहुत शुद्ध तरीके से खाते हो उसको, बहुत ऑर्गेनिक चीजें खाते हो। जो ऑयल खाते हो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लगाते हो। किचन में ना नॉर्मल नमक हटा के सेंधा नमक लगाते हो। धीरे धीरे, मे बी सडनली नहीं होगा, धीरे धीरे। जब आप साधना करते हो, वो वेल वेंटिलेटेड रूम होना है, थोड़ा लूज और कटन वेयर रहना है, बावेल एम्प्टी रहना है। सो ये सब डिसिप्लिन मानते हुए जब आप करते हो, एक गुरु का नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ प्रॉपरली करते हो, एक रॉन्ग सोर्स को नहीं अप्लाई करके, विद अ करेक्ट सोर्स, व्हेन यू आर डूइंग विद अ नॉलेज, आपका डिसीज क्या है, आपका क्या प्री डिसीजेस है, व्हाट इज योर शरीर प्रकृति, वात पित्त कफ किस में है, उसका अंडरस्टैंडिंग करते हो। विपरीत आहार को अवॉइड करते हो। जैसे मैं कफ प्रकृति का हूँ, उसके ऊपर मैं केला खा रहा हूँ, तो कैसे अच्छा होगा? तो उसको हम लोग थोड़ा गर्म समय में खाएंगे। नहीं खा सकते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उसको अवॉइड करेंगे। ठंड वाला आइटम से आप दूर रहेंगे। आपके लिए सूर्य नमस्कार 108 बेटर है। पित्त प्रकृति वाला सूर्य नमस्कार कम करेगा एंड चंद्र नमस्कार ज्यादा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हीट बॉडी है, तो उसके ऊपर और सूर्य नमस्कार दूंगा तो उल्टा पड़ेगा, तो मैं उसको वो डोज दूंगा। कोई अगर कफ प्रकृति है, शाम को सायं काल में दही खाना मना है, लेकिन हम लोग बिरयानी के साथ, इसके साथ, उसके साथ, लेट नाइट डिनर्स में दही रायता ये वो सब खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। तो हाउ इट विल गिव? आप प्रकृति के विरोध जा रहे हो। जब यू आर गोइंग एग्नेस्ट नेचर, दैट इज अगेन गिव्स यू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और हम जब ऑफिस में बैठते हैं, आपको निष्काम कर्म मनोभाव में, समर्पित भाव से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट व्हेन यू आर वर्किंग, वो सब जो आप करते हो, आपका ईगो घट जाता है, आपका अहंकार घट जाता है, समर्पण भाव, सेवा भाव जब आता है, काम में आपका एक्सलेंस बढ़ता है। और डिसीज रिलेटेड, एक ऑफिस में 2 घंटा काम किए, थोड़ा ब्रेक लेना है, आंखें बंद करना है, थोड़ा ध्यान करना है। व्हेन यू आर टेकिंग दैट ब्रेक, सिटिंग मोर देन 2 hours इन ए चेयर इज गिविंग स्लो पॉइजन टू आवर बॉडी। अगर एक जगह 2 घंटे से ज्यादा एक चेयर में बैठ रहे हैं, हमारा शरीर उसलिए नहीं बना है। आवर बॉडी एज डिजाइंड प्योरली फॉर वेजिटेरियन डाइट, it is for movement, body is for movement, it is for long breathe in and breathe out. Okay, so many postures we used to do in our old lifestyle, हम उसको आज फॉलो नहीं कर रहे हैं। खाना खाने के टाइम नीचे बैठेंगे, हाथ से खाएंगे। ओके, क्या होगा? ये 5 जो है फिंगर्स, वो जब अन्न से टच होता है, ये पंचभूत है, दैट इज गिविंग हिंट टू ब्रेन कि आगे खाना आएगा। वो हमें जठर अग्नि एक्टिव करना और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। देन अगर हम अन्न खा लिए, उसका आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी नहीं पिएंगे, बाद में 1 घंटा तक नहीं पिएंगे। कहीं शास्त्रों में बताया गया खाना खाने के बाद पानी पीना मतलब विष डाल देना, क्योंकि जठर अग्नि में आप पानी डाल दे रहे हो, तो क्या होगा? खाना हजम और डाइल्यूट कर दोगे, पानी पी के खराब हो जाएगा। तो नॉट लाइक दैट। अगर हिचकी आ रहे, थोड़ा और लग रहा है, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी ले सकते हैं, बट
you shouldn't violate that. So that is the lifestyle. Yoga is that lifestyle. और आप जब मंत्र उच्चारण करके नीचे बैठ के सुखासन में बैठ के खाना खाते हो, उसका बहुत सारा अलग अलग मीनिंग है. वो मतलब आज डाइनिंग टेबल कल्चर सिटीज में खड़े होके खा के निकल जा रहे हैं. सो किसी और चीज को मोबाइल देख के न्यूज देख के खाना खा रहे हो. सो यू आर वायलेटिंग योर माइंडफुलनेस. जब आप अन्न में ध्यान नहीं दोगे, हाथ पैर धोगे नहीं, नीचे बैठोगे नहीं, एक अच्छे पत्ते में या एक अच्छे थाली में बैठ के खाओगे नहीं, एक अन्न का पूरा एक नैवेद्य करके जब खाते हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ जाता है. एंड नीचे जब बैठ के खाते हैं, हाथों से जब खाते हैं, हमारा खुद का एंशिएंट कल्चर, देन इट्स पावरफुल. स्पून में नहीं खाना है. स्पून में आपका जीवा को पता चलता है कितना गर्म है, लेकिन हाथ से आप खाओगे पहले ही वो हिंट दे देगा खाना बहुत गर्म है. तो ऑटोमेटिक हो उसमें ना बैलेंस घी यूज करना है. सात्विक आहार में इट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल. और आपका एक फूड एंड डाइट दिनचर्या उस क्लास में आएगा. लेकिन आज का क्लास भी ये कवर करता है कि योगा इज नॉट ओनली बैलेंसिंग और कुछ आसन कर लिया आधा घंटा हो गया, नहीं. आपको होल डे में ऐसे कुछ कुछ चीजें करना है जो आपको अंदर से पूरा वही सेम बैलेंस लाएगा. वो आप काम में बोल सकते हैं, खाने में बोल सकते हैं, आपका एक्टिविटीज में बोल सकते हैं. जब आसन के जगह वॉकिंग भी कर रहे हैं, माइंडफुल वॉकिंग, ईटिंग कर रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टेकिंग द फूड, वो चीज करेंगे. एक्सेप्टिंग, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग सिचुएशंस पीपल एज दे आर, ओके, जब आप लोगों को परिस्थितियों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करोगे. व्हेन यू आर इन आपका मन को ओपन करते हो, लर्निंग सीखने के लिए जब एक्टिव करते हो, when you are started your brain to in active accepting mode, resistance ज्यादा नहीं, सीखने का इच्छा रखते हो, स्वाध्याय करते हो. when you are looking inside, okay, when you are reading more textures, that wisdom, that knowledge will bring you to the calmness, to the gentleness. And when one Patanjali Yoga Sutra is there, yoga chitta vritti nirodha. Chitta is mind, okay, chitta means मानस, ईगो, अहंकार, वो सब अगर, और मेंटल फ्लक्चुएशन, वृत्तिस, मंकी माइंड, जंपिंग हियरन, उसको जब आप ध्यान धारणा जब करते हो, त्राटका जब करते हो, एक ऑब्जेक्ट पे, एक बिंदु पे जब ध्यान देते हो, दैट इज धारणा. ओके, नेक्स्ट, जब उसको ही आप ना फिर से अगर वो धारणा को एफर्टलेस कर देते हो, कुछ दिन अभ्यास, वैराग्य, वो अभ्यास चीज करते हो, आप में परफेक्शन आता है. एंड व्हेन इट इज कंटिन्यूस, इट इज ध्यान. एंड ध्यान जब पूरा एक्सट्रीम स्टेज में जाता है, इंटरनल एब्जॉर्प्शन, जब एनलाइनमेंट, ओके, आप पूरा अंदर से पूरा क्या बोलते हो, शांत हो जाते हो, एक पूरा रिलैक्स हो जाते हो, पूरा एनलाइटेड, मतलब पूरा आप फील कर पाए हो कि आई एम मूविंग आउट ऑफ डार्कनेस. मन जब शांत होता है, आपको जब योग का अर्थ पता चलता है, जब आपको पता चलता है कि मैं आत्मन हूँ, पार्ट ऑफ ब्रह्मन, मेरा जो जन्म है वो एक टेम्पररी जन्म है, मेरे साथ कुछ जाएगा तो वो कर्म है मेरा, जो कर्म करूंगा वो मुझे रिटर्न में आएगा. अगर अच्छा कर्म करूंगा, नेचर का रूल है, आज जो कर्म किए हैं कल या परसों वो आपको फिर से रिटर्न ही आएगा. सो आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा चीजें आएगा. और कर्म भी है स्पिरिचुअली, हमारा एक कर्म से है, उसको क्या बोल सकते हैं, एक डेटाबेस. पूर्व जन्म में जो किए हैं वो संचिता कर्म में आता है. जो इस जन्म में वो है प्रारब्ध, मतलब पूर्व जन्म का चीजें प्रारब्ध में एक्टिवेट होता है. एंड आज का एक्शन जो करते हो वो आगामी कर्म के लिए आपका डिसाइड करता है. तो आपका कर्म जब तक न्यूट्रल नहीं हुआ, आप एक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहते. तो उसका बंधन से मुक्त होने के लिए यू हैव टू बी इन द यमा नियमा, सच अच्छे कर्म, निष्काम कर्म, लोगों का सेवा, मानव का सेवा ही माधव का सेवा. जब आप धर्म के साइड में रहते हो, धर्म रक्षितो रक्षिता, जब आप धर्म के पाथ में रहते हो, धर्म विल टेक केयर ऑफ यू. जब आप गुरु या आपका इष्ट देवता को समर्पण करते हो, भक्ति योगा बोलते हैं, तो आपका समर्पण जब होगा, अहंकार ईगो नहीं होगा, मन शांत होगा, तब आप सेवा मन भाव कर सकते हो. एंड दैट इज टुडे मिसिंग इन आवर सोसाइटी. जब आप सबको अपना सोचते हो, बिलोंगिंगनेस सोचते हो, तब सत्य योग शुरू हो जाते हैं. तब आपको किसी कुछ चीज में हेल्प करोगे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे रिजल्ट, तब क्या होगा, आपको उनसे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए. बट द टाइम यू आर डूइंग गुड कर्म, इट विल कम बैक टू यू. वो इस जन्म में नहीं है तो अलग जन्म में भी आना पड़ेगा. अगर आप गलत आज किसी के साथ कुछ किए हो, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, हर्ट समथिंग, किसी को चीट किए हो, आपको वो
और ज्यादा भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में। व्हेन you'll be in that knowledge, कर्मा का नॉलेज में। मुझे 84 लाख जोनिस के बाद, 84 लाख जोनी के बाद, डिफरेंट स्पेसिस के बाद ह्यूमन बर्थ मिला है। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आपको बहुत सारे जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और उससे अगर आपको आगे कोई ऑप्शन है, वो है मोक्ष का ऑप्शन, जो कि बाकी स्पेसिस में, जब आप पेड़ थे आपका ऑप्शन नहीं था, जब पहाड़ थे, नदी थे, कुछ पत्थर थे, आपका ऑप्शन नहीं था, जब आप कीट पतंग थे आपका ऑप्शन नहीं था, जब आप पशु में जन्म लिए थे आपका ऑप्शन नहीं था, जब मनुष्य जन्म भी लिए थे और सपोज विकलांग थे कि कुछ पागल थे कि मानसिक कुछ थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। वी डोंट नो हमारे पास्ट। लेकिन अभी जब हम समझ में आ रहा है, इस ज्ञान में है, आज प्रेजेंट मोमेंट में है, और आज हम जब समझ में आए कि ये सिर्फ योग नहीं है, एक ब्रह्म विद्या है, इसमें कोई भी एक बात चूज करें, कर्म योगा, आपका कोई भी डिसिप्लिन होगा, उसको जीवन का आचरण में लाएंगे, दिनचर्या में लाएंगे, सीजनल रिलेटेड सात्विक फूड, बहुत ऑर्गेनिक चीज में खाएंगे, व्यवहार भी वैसा रहना है, हमारा साधना वैसा रहना है। और आप जब मेडिटेट करते हो, मनोमय कोश, जैसे मैं 2 कोश बोला था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, नेक्स्ट मनोमय कोश, जब आप ध्यान करते हो, मन का शुद्धि करते हो, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो धारणा से शुरू करना है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जब आप धारणा से शुरू करते हो, तो धीरे धीरे वो जब एफर्टलेस हो जाते हैं, वो ध्यान हो जाते हैं, तब आप मनोमय कोश, उससे और डेप्थ में अगर जाए, विज्ञानमय कोश, वो आपका अल्टीमेट लेयर है, जिसमें आप अटैचमेंट वगैरह से हट जाते हो, पूरा मेटेरियलिक चीजों से हट जाते हो, पूरा आप जान पाते हो कि मेरा रिसर्च लेवल जो बोलते हैं ना आजकल, पीएचडी वगैरह, उस लेवल में आप आपका ज्ञान से किसी को मदद करते हो। आपका ज्ञान से जब आप पूर्व जन्म के बारे में जानते हो, कर्मों के बारे में जानते हो, आप आगे जान पाते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा ये सब पंचभूत से बना है शरीर, एंड जब मुझे जोड़ना है, सुप्रीम कॉन्शियस की तरफ जाना है, वो सब चीजें अगर आ गया, तो दैट इज विज्ञानमय कोश, बहुत नॉलेज वाला, नॉलेज और इंटेलेक्ट वाला लेयर। फिर उस कोर्स के बाद नेक्स्ट है फाइनल कोर्स, आनंदमय कोर्स। वो मुनि ऋषि महर्षि लोग क्या है, उन लोगों को और वैवाहिक वैवाहिक लोग से और वैवाहिक जीवन से, मेट्रिलिक्स वर्ल्ड से और लिंक नहीं रहता। वो लोग पूरा भगवान के साथ अपना तार जोड़ लेते हैं, मीन्स दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उनको ये समझ में आ गया कि inside me which life force is there, that is also Brahman, that is part of Brahman. Atman is nothing but one of the part of Brahman, और आत्मन और ब्रह्मन का यूनियन, योग इज नथिंग बट योगा, वही अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। और सांसों पे जो ध्यान कर लिया, जब आप सांसों पे ध्यान करते हो, आप खुद सांस लेना छोड़ना नहीं करेंगे, आना पाना, जस्ट यू आर डूइंग ब्रेथ अवेयरनेस, वो क्लास भी आपका आएगा। जब आप सांसों पे ध्यान देते हो, उसको जब पूरा ध्यान देके आपका अटेंशन फैकल्टी बोलते हैं उसको, विटनेस करते हो। विटनेस मतलब क्या, साक्ष्य भाव से आपके सांसों को लेते हो और छोड़ते हो, मतलब आप खुद कुछ नहीं करते हो, शरीर सब करता है, सिर्फ आप ध्यान देते हो। तो वो भी आपका एक बहुत पावरफुल चीज है। और दिनचर्या में आप बहुत अलग चीजें भी कर सकते हो, जैसे आजकल डॉक्टर बोल रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप जैसे बहुत समय तक 12-14 घंटे तक अन्न नहीं दे रहे हो, तो आपका शरीर में बहुत सारे गंदगी को क्लीन करता है। और कुछ लोग अगर आप देखोगे पुराना दिनचर्या में एकादशी करते थे, 15 दिन में एक बार फास्टिंग कर रहे थे, बहुत सारे पूजा पाठ में फास्टिंग कर रहे थे, रजा करते थे। ये सब डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट कैस्ट रिलीजन्स में कुछ कुछ फास्टिंग का प्रोसेस है। क्यों है? साइंटिफिकली इट्स प्रूवन। अगर आप 72 घंटे तक फास्टिंग कर लेते हो, आपको पूरा एक नया कोष ही, बॉडी का पूरा सर्विसिंग हो जाता है, न्यू सेल जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, धीरे धीरे बॉडी को ट्यून करना है। पहले हम क्या करेंगे, फ्रूट्स फास्टिंग करेंगे, कुछ एक 15-20 दिन या 1 महीने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा फल मूल घटा के जूस में आ जाएंगे, फिर थोड़ा वाटर लेवल में जाएंगे। और वो जैसे आदत हो गया 5-6 महीना, धीरे से उसको वाटर लेवल फास्टिंग से थोड़ा जल घटा देंगे, फिर निर्जला उपवास बोलते हैं, तो ऐसे चीजें करेंगे। और उसके बाद अगर हो पाए उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे 2 to 3 डेज में, with a guidance and with your complete health. When you are implementing these all things, आपका biological age will come down. After 36 hours body, 36 hours of fasting, okay, fasting, body its own garbage called autophagy. बहुत बढ़िया मैम, वेरी गुड, यस। सो देखिए, एक मैम बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन दिए। मैं सुना था 72 आवर्स के बाद हमारा
बहुत सारे पुराने गंदगी क्लीन कर देता है बॉडी, जो कि आप ना जितना मेडिकली करो नहीं होगा। वैसे आप अगर जैसे बहुत जल्दी खाना खा लेते हो, यस, ऑटो ऑटोफैगी, यस मैम। सो जैसे आप अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल फूड खा के बहुत जल्दी शाम को खत्म करके नेक्स्ट डे सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट लास्ट लेट करते हो, तो आपका क्या होगा? एक दिन शाम को खाना खाए हो, नेक्स्ट डे सुबह तक 12 घंटा हो गया, उसके बाद और 3-4 घंटा ऐड कर लो, 15-16 घंटा कर लिए। आपका बॉडी में बहुत अच्छा इंटरनल ऑर्गन्स को इतना क्लीन लगेगा, प्राण शक्ति आपका ऑर्गन क्लीनिंग करने लगेगा। देन आपका बहुत सारे हेल्थ इश्यूज घट जाएंगे। आप सिर्फ ना कुछ नहीं, त्राटका कर लो कुछ दिन और ध्यान कुछ दिन कर लो और अन्न को केयर कर लो, हल्का आसन करो एज पर डिसीज, बहुत चीजों में चेंज आ जाएगा। यस मैम, दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। लेकिन 14 आवर्स भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, 12 घंटा पहले ट्राई कीजिए, ट्राई फॉर 12 आवर्स। आज एक 5-6 बजे खा लिए, कल सुबह 5-6 बजे तक कुछ नहीं खाना है, और उसके बाद आप कुछ इनिशियली जूस वगैरह से शुरू करेंगे, बहुत चेंजेस आएगा। एंड वो अगर आप करते जा रहे हो, वेट मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, रिवर्स एजिंग विल हैपन, बहुत बढ़िया मैम, रिवर्स एजिंग हैपन, दैट इज बायोलॉजिकल एज विल कम डाउन। अगर इन सब चीजों को हम दिनचर्या में रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अन्न को खाने में एक मेंटेन करते हैं, अपना वात पीत प्रकृति के हिसाब से अन्न को अलाइनमेंट करते हैं, डाइट प्लान सही से करते हैं, और एक जनरल कहावत है, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। तो हमारा खाना को भी बार बार नहीं खाना है, 3/4 ऑफ योर स्टोमक यू हैव टू ईट। एक एक ना 1%, अगर हमारा खाने का कैपेसिटी सपोज 8 रोटी है फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 रोटी आज कम करूंगा, और मैं क्या करूंगा, थोड़ा बॉडी में एम्प्टी स्पेस छोड़ूंगा, डाइजेशन इजी होगा, हमें आराम लगेगा, इंटरनली हमें डाइजेशन बहुत फास्ट होगा। एंड आप जब प्राणायाम करते हो, ऑटोमेटिक आपका भूख क्रेविंग्स घटता है। और अगर वात पित्त कफ को नजर रखते हुए, ऋतुचार्य का ध्यान रखते हुए, सीजन रिलेटेड फूड खा के एक डिसिप्लिन वे में रहेंगे, तब होगा, तब वो दैट विल हेल्प यू इन लाइफ। और एक चीज भी है, जैसे कि आप एक सात्विक आहार खा रहे हो, उसको फ्रेश और गर्म खाना है, 3 घंटे के बाद उसमें सात्विकनेस घट जाते हैं, 6 घंटे के बाद वो राजसिक कर्ण हो जाता है। तो बहुत जला तला केमिकल फूड, पैकेज फूड, इनसे दूर रहेंगे, प्लांट बेस्ड फूड करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस ऑल आर डिजाइन्ड फॉर प्लांट बेस्ड फूड, नॉट फॉर नॉन वेज, नॉट फॉर कुछ किसी का खा के, क्योंकि यू आर वायलेटिंग अहिंसा ऑल्सो। एंड जिस जीव को मारा जा रहा है, उसका दुख, उसका रोना, उसका डर, उसका स्ट्रेस हार्मोन, वो हमारे शरीर में आ जाता है जब आप खाते हो। तो आपका मन विचलित होगा, क्यों? जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप किसी को कष्ट दे के पैसा कमा के उससे भी खरीद के लाए हो, आपका मन शांत नहीं होगा। तो यू हैव टू बी इन द योगिक पाथ, नॉट ओनली विथ डाइट, योर थॉट प्रोसेस, योर साधना इन दिनचर्या, विथ सीजन, विथ चैंटिंग्स, विथ आसना प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहारा, और यमा नियम का हर नियम मानेंगे। क्या है? मैं किसी का क्रेडिट चोरी नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का काम को, किसी का कोई भी वस्तु को चुराने का कोशिश नहीं करूंगा, समर्पण, संतोष रहना है, मुझे भगवान जो दिया उससे मैं खुश रहूंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा, यस, ग्रेटिट्यूड। जब मैं जो चीजें मुझे मिला है वो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। अरे एटलीस्ट मुझे 2 हाथ 2 पैर हैं, बहुत लोगों का 2 हाथ 2 पैर नहीं है, मेरे 2 आंखें काम कर रहे हैं, लोगों का आंखें ही नहीं है। ओके, जन्मजात अंधा अंधे हैं, कुछ का अ, मतलब क्या बोलते हैं, मेंटली वो लोग पागल होके ही पैदा हुए, दे डोंट नो व्हाट इज, तो उनका जीवन कितना कष्ट में चलेगा आप लोग, क्योंकि उनको ना कुछ पुराने पाप के वजह से वो लाइफ पूरा भोगना पड़ा। तो अभी पत्थर, पेड़, वो सब जन्म क्यों मिला है? क्योंकि उससे हमें क्या है, हम जब सहते हैं धूप को, बारिश को, सबको, फिर हमें अपग्रेड करता है नया जीवन में। उसमें भी हमें मोक्ष का मार्ग नहीं है, उसमें अगर हम सही तरीके से कुछ पनिशमेंट लिए, कुछ ये किए, कुछ अच्छा कर्म किए, कुछ सहे, तो कुछ पाप कटता है, और कुछ अच्छे कर्म की वजह से हमें फिर गाय का जन्म कुछ मिलेगा। उसमें जब हम निरंतर समाज का सेवा किए, फिर हमें गौ माता बोलते हैं, तो माता का रूप, फिर उससे हमें अपग्रेडेड करते हैं ह्यूमन बर्थ में। ह्यूमन बर्थ में भी अगर हम लोग फिर से अच्छे कर्म किए, अच्छे गुड क्वालिटीज किए, तो हमें अपग्रेड करते हैं और बेटर लाइफ में। तो वो अच्छे कर्म के लिए ही होता है, सेवा साधना सत्संग, और हमारा विजडम नॉलेज की वजह से होता है, एंड दैट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल ऑफ योगा।
और साइंटिफिकली भी है। योगा इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल टेक्निक और होलिस्टिक वे, साइंटिफिकली ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रूवन। बहुत सारे चीजों का प्रमाण है। एक भ्रामरी अगर करोगे, भ्रामरी अगर जो लोग नहीं जानते हैं, 1 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। आंखें कान बंद करेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ के हमिंग बीट अभी करेंगे, देखिए। हम्म, इसको भ्रामरी बोलते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन, एक भ्रामरी से, एक हमिंग बी साउंड से, ओके, क्या होता है, भंवर का शब्द से, वो जो हुम साउंड से आपका पॉजिटिव ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, मन शांत होता है, एंड आपका पॉजिटिव स्टार्ट होता है। तो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब खत्म करेगा। तो 3 भ्रामरी प्राणायाम, एक अनुलोमा विलोमा, ओमकार उच्चारण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम, उससे आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन होता है। अब बोलोगे सर ये आज्ञा चक्र क्या है? हमारे में 8 चक्र मेन वाला है। उन 8 चक्रों में एक एक चक्र का एक एक मीनिंग है। सो मूलाधार चक्र जो कि बेस ऑफ द स्पाइन में है, थोड़ा ऊपर आएंगे नाभि के नीचे, उसमें क्या आता है, आपका स्वादिष्टान चक्र। जस्ट नाभि के ऊपर मणिपुरा चक्र, उससे आगे छाती में अनाहत चक्र, आपके गले के पास विशुद्धि चक्र, इन बिटवीन आईब्रो आज्ञा चक्र, सर के ऊपर सहस्रार चक्र, सर के पीछे बिंदु चक्र या महाचक्र। तो इन चक्रों का आपका प्राणिक लेयर या सटल एनर्जी जो प्राणमय कोश बोलते हैं, उसमें ये चक्रास भी आते हैं। तो क्या है, आपका जब अच्छे से आप ध्यान करते हो, मेडिटेट करते हो, ओके, चक्र बीजा मंत्र मेडिटेशन में करवाऊंगा कभी, योग निद्रा वगैरह में। तो उसमें क्या होता है, आपका ईच एनर्जी फ्लो होता है, सुषुम्ना में एनर्जी पास होता है, लेफ्ट और राइट नो जो है ईडा पिंगला, वो पूरा नीचे बेस ऑफ स्पाइन से ऐसे आया है पूरा ऊपर तक, कहाँ तक, पूरा यहाँ जुड़ता है। तो क्या होता है, डेफिनेटली इट विल कूल योर बॉडी, बैलेंस योर बॉडी। और सुषुम्ना में जब प्राण का प्रभाव होता है, और अगर मैं बोलूंगा सुषुम्ना के अंदर और एक है, उसको ब्रह्मा नाड़ी बोलते हैं, और ऊपर आके वो आता है ब्रह्म आंध्रा। मतलब जो योगी हैं, जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनका प्राण शक्ति जो है मृत्यु के समय ब्रह्मरंध्र से, सहस्रारा चक्र से निकलता है। और जो नॉर्मल लोग हैं, भोगी लोग हैं, पापी लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं, नॉर्मल पर्सन, उनका प्राण शक्ति नीचे से जाता है, मूलाधार चक्र से होकर रिलीज होता है। तो जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो ध्यान करते हैं, उनका जीवन ऊपर से जाता है। एंड ब्रह्मरंध्र, उसमें जब एनर्जी फ्लो होता है, देन यू आर मेंटली वेल बीइंग। तो वही सब चीजें हमें जानना पड़ेगा। और अगर सोच रहे हैं कि सर ये चक्र क्या है, कैसे देखें, बहुत डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है अभी। जस्ट फॉर ए नॉलेज पर्पस बोला कि दिनचर्या में योगा मतलब कोई एक भगवान को पूजा करना, कुछ एक कर देना, वो नहीं है। इट इज ऑल अबाउट ए लाइफ स्टाइल यू हैव टू फॉलो इन एवरीवेयर। थोड़ा सा सन बात करेंगे, खाली पांव चलेंगे ऑन ए ग्रास ग्राउंड में, वो अर्थिंग करेगा। जब आप शारीरिक कुछ करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ आवर नेचर, क्योंकि हमारा बॉडी एक जगह बैठने के लिए नहीं, खटने के लिए बनाया गया है। इट्स ऑल टू वर्क हार्ड, एंड कुछ शारीरिक उसको देना है, तब बाकी चीजें ट्यून होगा। जैसे आप 8 घंटा सोते हो, ऐसे 1 2 3 घंटा चलना भी है, खटना भी है, ओके, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, उस हिसाब से नेचर का रिलेटेड फूड खाना है, ओके। और आपका बॉडी का इंटेंशन जैसा है, ह्यूमन स्पेसिस जैसा है, उसके हिसाब से रहेंगे। किसी को धोखा नहीं दे के, कुछ नहीं करके, जब आप अच्छे तरीके से कमाओगे, मन शांत रहेगा, आराम लगेगा, और जो अच्छे कर्म किए उससे ही आपको मोक्ष या वट एवर योर गॉड, मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ इट इज भगवान। अगर आपका अल्लाह है, अल्लाह। अगर आपका फादर है, फादर। किसी का बौद्ध धर्म है, उनका है, उनका। तो जिसका जो है, दैट ऑल विल एड, और उससे आपका मीनिंग बनता है। और अगर आप देखेंगे, यहाँ तिलक जो लगाते हैं कुछ लोग, क्यों लगाते हैं? गुरु लोग देखिए, नॉर्मल लोग देखिए, एक लेडीज लोग को देखिए, यहाँ टीका वगैरह लगाते हैं। ये राधा कृष्ण का संगम समय आज्ञा चक्र है, उसमें जब आप टीका लगाते हो, आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर भी हुआ, छिन छतर होकर नहीं मरेंगे। क्यों? यू आर सरेंडरिंग टू द गॉड। तो जब भी आप टीका, चंदन ऐसे कुछ लगाते हो, थोड़ा हल्दी लगाते हैं, लेडीज लोग लाल बिंदी लगाते हैं, क्योंकि इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर यूट्रस, आपका, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, गर्भाशय। नहीं, गर्भाशय तो है, लेकिन जो इसका अर्थ क्या है, प्रस्फुटित होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिस इज नथिंग बट ग्रोथ, साइन ऑफ
हाँ, प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि करता है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। और प्रजननात्मक, हाँ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है लाल रंग। और एक आपका समृद्धि, उसका मीनिंग है लाल रंग, तो उसीलिए उनको लगाता है। और बहुत स्क्रिप्चर में माना जाता है, लेडीज लोग जो यहाँ लाल टीका और यहाँ भी जो लगाते हैं, डायरेक्टली सुषुम्ना के ऊपर लगाते हैं। क्यों? वो मानते हैं कि ये मेरा हस्बैंड या मेरे पति देव का लिंक भी है। तो वो अपने हस्बैंड को जब अपने अपने हस्बैंड को ही जब भगवान मान लिए, स्वामी ही परमेश्वर, वो फीलिंग जब आ जाता है, दैट रिलेशन विल बी एक्सलेंट। आज का दिन में वो सब घट रहा है, सब में ईगो इश्यू है, सब में मेटेरियलिस्टिक फाइटिंग है, डिवोर्सेस ज्यादा है, सब है। लेकिन पहले एक बार एक औरत एक पर्सन को एक्सेप्ट कर ली, कंप्लीट सरेंडर। वैसे एक हस्बैंड ऑल्सो एक्सेप्ट की वाइफ इज माई लक, माई प्रॉस्पेरिटी। हाँ, लाल रंग प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल, मतलब उसको, वो मेरे वंश को विस्तार करेगी। और कन्यादान का मतलब पहले सिर्फ लड़की देना नहीं है, उनका गोत्र का दान भी करते थे। एक औरत अपना पूरा सब कुछ छोड़ के हस्बैंड का नाम को एक्सेप्ट कर लेती थी, उनका गोत्र में आ जाती थी। तो उनका एक वो बिगर, मतलब इसको बोलते हैं बिगर कल्चर था वो। तो उसीलिए मैरिज वाज इंस्टीट्यूशन प्रीवियसली। आज का मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स, एलुमिनी, कोर्ट कचेरी। ओके, लड़कियां भी ऐसे हैं, लड़के भी ऐसे हो गए हैं कलयुग में। क्यों? लड़कों को चाहिए एक बहुत सेटल्ड वेल, ये वो सुंदर लड़कियों को चाहिए मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी, नहीं तो बहुत अमीर या एक सेलिब्रिटी, एक बहुत अच्छा हाई पैकेज सैलरी बंद। व्हेन यू आर मैरिंग टू ए पैकेज, वो पैकेज जैसे बंद हो गया, आपका रिलेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट। अभी बेंगलुरु में एक हस्बैंड का नौकरी चला गया, ही हैज डन सुसाइड। फिर उसकी वाइफ जैसे खबर सुनी, वो आई कि मेरा हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे, घर आके देखी, सी ऑल्सो जम्प्ड फ्रॉम समथिंग। अरे, जब आप लोग आईआईटियंस थे, इतने बड़े पोजीशंस में थे, एक का नौकरी चला गया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और थोड़ा कम लाइफ जी लेते। इफ यू हैव कमिटेड वेरी हाई, थोड़ा उस सिचुएशन में निकलने के लिए थोड़ा सोचते। बट सडन जंपिंग इज नॉट ए सोल्यूशन। ओरेकल ने 30,000 लोगों को फायर कर दिया अभी कुछ दिन पहले। इंडिया में भी 12,000 लोग का जॉब। अगर आप लोग ऐसे सुइसाइड कर दोगे, यू आर जस्ट गोइंग मैड, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, देन हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बनेगा? एंड देयर योगा मेडिटेशन प्लेस ए रोल। क्या? यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। नहीं है तो क्या करोगे? जॉब इज नॉट ओनली अल्टीमेटम, जॉब इज पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ बिजनेस करो, कुछ कम में चलो। ओके, अगर आपके लिए और कुछ बेटरमेंट है, प्लान एंटरप्रीनरशिप, छोटे से प्लान करो। नो नीड टू टेक बिग लोन्स, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग। अगर आप देखोगे स्टाटस के लिए, ईगो के लिए, यू नीड ए 2 BHK इंडिपेंडेंट बंगलो। जीने के लिए आपको 2 कमरे काफी हैं। एक कमरे में सोओगे, एक में खाना पीना बना के गेस्ट के लिए कि पेरेंट्स के लिए रहा। एक 2 BHK इज मोर देन एनफ। व्हाई आई नीड ए बंगलो ऑफ 5 crores जबकि मेरा सैलरी 2 लाख है? व्हाई आई कैन नॉट सेव व्हेन आई एम नॉट श्योर कि आई डोंट नो माय पास्ट, एआई आ रहा है, कुछ चीजें आ रहा है, व्हाई आई ओवर कमिट? तो जब आप ना मित व्ययता, इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज समथिंग कॉल्ड मित व्ययता। अपना चादर उतना ही फैलाओ जितना हमारा कैपेसिटी। पीपल आर लिविंग शो ऑफ लाइफ, यस, किसी को दिखाना नहीं है। एक बहुत नॉर्मल चीज, एक परमानंद जी बोल रहे थे, हमें एक्चुअली रहने के लिए एक ही कमरा चाहिए, बाकी सब में हमारा अहंकार, ईगो रहता है। तो व्हाई यू नीड 10 रूम्स बंगलो? हाँ, राइट। क्यों किसी को दिखाने के लिए मैं क्यों कार खरीदूं? मुझे ऑफिस जाना आना मेट्रो में जाके हो, बस में जाके हो, और बाकी दिन ना बड़ा अगर इफ यू बड़ा गोइंग। खूबसूरत बड़ा खूबसूरत शेर है। आपको सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। जो आप शेर का बात कर रहे हैं ना, वो ये हाँ, है कि रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। उसका गुरूर, गुरूर, एरोगेंस। करेक्ट। देखिए रहता मैं, है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। जी, तो देखिए, जो अभी रिसेंटली बेंगलोर का मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ। आफ्टर दिस ऑल, 1-2 साल से एआई की वजह से बहुत नौकरियां जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स वगैरह। तो जो लड़कियां पैकेज देख के शादी किए थे गांव से, कि अरे, जब आपके पापा 15-20 हजार 30 हजार सैलरी में जब चलाते थे घर, वाई यू आर एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू बी इन 10 लाख 20 lakhs पैकेज वाले लड़के को ही क्यों शादी करूंगा? आर यू मैरिंग टू ए मेट्रो सिटी और यू आर मैरिंग टू ए हस्बैंड? आप एक पर्सन को शादी कर रहे हो, क्यों इतना हाई एक्सपेक्टेशन? उसका पैकेज 20 लाख अगर है, शादी किए हो, 3 साल के बाद अगर बेचारे का नौकरी चला गया, क्योंकि इट्स ए कॉर्पोरेट, उस बेचारे का हाथ में नहीं है। कौन चाहता है कि मेरा नौकरी चला जाए? लेकिन कुछ सिचुएशन है, प्रोजेक्ट चला गया, नाउ इंटरनेशनल युद्ध हो रहा है,
तो एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ये स्थायी नहीं है, ये दिखावा है। अगर आप ना, अगर पहले एक पर्सन को उसका क्वालिटी देख के, उसका अच्छा विचार देख के एक बैलेंस्ड, एक नॉर्मल बंदे से शादी करते, मैं पैकेज नहीं बोल रहा हूँ, इंसान का घर, उसका क्वालिटी, उसका हिसाब से आप शादी किए होते, तो आज आपको डिस्टर्ब क्यों नहीं होता? अगर मुझे आज ज्यादा मिल रहा है, मुझे गॉड इज गिविंग ए चांस, थोड़ा सेविंग करूंगा, थोड़ा फ्यूचर के लिए रखूंगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में डालूंगा। क्यों भाई? कुछ बुरा समय में शहर में कोई कुछ नहीं हेल्प करेगा। शहर में क्या, जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है वही लोग छोड़ देंगे आपको, हु आर वेरी क्लोज रिलेटिव्स। व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम, आप जब दुनिया को बता दोगे मैं प्रॉब्लम में हूं, आपका फोन नहीं उठाएंगे लोग। तो जैसे उज्जवल जी अभी बोले, बहुत बढ़िया बोले सर, गुरूर अहंकार जाता। आप बोलो व्हाई यू नीड ए कार? अगर आप एक सिंपल परिवार से हो, आप अगर 20-25 साल एक मिडिल क्लास से आए हो, आपको दिल्ली आने के टाइम आपको कार सडनली जरूरी पड़ गया, जब कंफर्टेबल हो तब लेंगे। पहले मैं एक जॉब तो ढूंढ लूं, उसमें कुछ सेव तो कर लूं, मेरा बेसिक चीज कार नहीं है, कार जस्ट जाने आने का साधन है। ओला उबर बुक कर लो जब फैमिली बाहर जा रहे हो। इनिशियल बोल रहा हूं मैं। मित व्ययता योग बोलता है, अपना जितना शक्ति है उसके अंदर डिसीजन लो। सेविंग ऐसे लिए करो, कुछ धर्म काम इसलिए करो, कुछ ऐसे नॉर्मल ग्राउंडेड रहो। क्यों ना, हर परिस्थिति में आप समत्व भाव में रह सकते हैं। भागवत गीता में बोला गया, योगा उच्यते समत्वम। आप जब हर स्टेज में समान तरीके से जाते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का आधा बीमारी है, लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। और ये भी बोल रहा हूँ, आप लोग बोलोगे सर आप लड़कियों का एग्नेस्ट में बोलो, मैं बोल लड़के भी ऐसे बदमाश है। क्यों? वाई यू आर एक्सपेक्टिंग हाई डाउरी? अगर तुम्हारा 10 लाख पैकेज है, क्यों चाहते हो कि एक मिडिल क्लास हस्बैंड, मिडिल क्लास लड़की का पिता अपना जीवन का हर चीज कंट्रीब्यूट करके आपको पूरा दहेज में दे दे? सो नो, मैरी नॉर्मल ना, गंधर्व विवाह करो ना, गंधर्व विवाह एक पद्धति से करो। अगर उनका लड़की को वो लोग अगर अपना प्रॉपर्टी से कुछ शेयर दे रहे हैं, दैट इज हर राइट्स, लेकिन आपको मांगने का कुछ जरूरत नहीं है। वी नीड मनी फॉर सर्वाइविंग ओनली। हाँ, थोड़ा सर्वाइविंग के लिए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर मत खरीदो, वो सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे पहले का एक ट्रेंड था, मेरे फादर को घर बनाने के लिए एज 58 हो गया, बट व्हेन व्हाई आई नीड ए होम इन द एज ऑफ 25-26? क्योंकि मुझे लड़की नहीं देंगे। सोसाइटी, समाज, समाज का सोच को हमें बदलना है। व्हाई आई नीड ए होम डुप्लेक्स एंड ऑल एट द एज ऑफ 30? क्यों मुझे एक ना बहुत हाई स्टैंडर्ड कार चाहिए? क्यों? मेरा पापा तो कभी कार नहीं खरीदे। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। जब मुझे आज मेरा कैपेसिटी नहीं है, मेरा सैलरी 30-40 हजार है, 1 लाख 1.5 लाख डिपॉजिट देके मैं कार ईएमआई में चला रहा हूँ, दैट इज नॉट ए एप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी। जब आप कंफर्टेबल मनी है, आपका पर्सनल नीड्स खत्म है, देन यू गो फॉर दैट। क्यों? व्हाई यू नीड ए इंटरनेशनल स्कूल फॉर योर बेबी? आप नॉर्मल लाइफ नहीं किए थे क्या? देन send your school to government school or normal schools ना। why you are sending him just अपार्टमेंट में, gated community में, रिलेशन में चर्चा करने के लिए उसको डिनोबली भेज दे रहे हो? अगर हमारा कैपेसिटी नहीं है, नहीं, दैट इज फॉर सेलिब्रिटीज, दैट इज फॉर बिग पीपल, लेट देम डू। जो अंबानी का बेटा करेगा या कोई बॉलीवुड स्टार का बेटा करेगा, व्हाई आई नीड? मुझे अभी सडनली वो सब चीजें क्यों चाहिए? ले सकता हूँ बड़े सोच, लेकिन पहले हैसियत बना के खर्चा करो। फर्स्ट अर्न मनी देन स्पेंड। इट्स नॉट लाइक यू विल फर्स्ट स्पेंड मनी एंड देन यू विल पे द थिंग। एंड ये सब चीजों से स्ट्रेस बढ़ रहा है सोसाइटी में, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ये जीवन शैली को, इन इन जो हमारा सनातन क्वालिटीज को जब लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, डिवोर्सेस घटेंगे, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। यस, आप लोग सब समत्व भाव में जाएंगे। हाँ ज्योति मैम, आप कुछ बोल रहे थे, मैं थोड़ा फ्लो में था तो रोक नहीं पाया, बोलिए। नहीं सर, ये मैं बोल रही थी कि पहले लोग पैसे के पीछे भागते हैं, फिर वही पैसा बाईपास सर्जरी वगैरह में डालते हैं। उनको सही में पता नहीं है कि उनको चाहिए क्या। यस मैम, वही मैं बोल रहा था। देखिए, हाँ। आपके पास बहुत पैसा है, बट यू आर स्ट्रगलिंग मेंटली, हैप्पी नहीं हो, अंदर से डर डर के रह रहे हो, अरे जॉब से निकाल देंगे, अरे इतना ईएमआई है, अरे घर निकाल लेंगे। बैंक से लोन लिए हो, जब तक वो अपना 120% एक्स्ट्रा वसूल नहीं करेगा, आपका घर आपका नहीं है। आपको लगता है मेरा घर, खुद का घर, अपना घर, पार्टी दे दिए, लोगों को बोल दिया मैं घर खरीद लिया, हाँ पूरा घर खरीद लिया, सबके 5 साल ईएमआई पे किए, टक से नौकरी चला गया, दोनों बिल्डिंग से कूद लोगे, मतलब नहीं है। तो when we'll be in balance,
ये सब चीजें, समाज के चीजें, अगर सोच को हम परिवर्तन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, अगर हम मितव्ययता में चलेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, और हम लोग को अपना कर्म को एक्सेप्ट करना है। व्हेन वी आर अप्लाइंग दैट ऑल, टुडेस टॉपिक इज दैट योगा सिर्फ आधा घंटा नहीं है, वो चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, एक्सेप्टेंट करना है। और सतयोग क्या है? जब आप गंधर्व विवाह करते हो, जब पॉजिटिव से लाइफ स्टार्ट करते हो, दोनों, मैरिज इज ए कॉम्प्रोमाइज। अब वो इंस्टीट्यूशन को जब आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, दोनों दोनों को रेस्पेक्ट दोगे, पर्सनल स्पेस दोगे, दोनों एक होके कि हम मिलके आगे एक न्यू लाइफ को, अच्छा लाइफ देंगे, घर में संस्कार रखोगे, पूजा पद्धति रखोगे, सोसाइटी में बैलेंस करके चलोगे, देन इट विल हेल्प। एंड दैट ऑल एप्लीकेबल टू दिस टॉपिक। शायद आपका वाईबी डॉक्यूमेंट में कम लिखा होगा, लेकिन प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, पार्ट ऑफ योगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार इज दैट अगेन आपका विथ पात, वात, पित्त, कफ, प्रकृति, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर। विरुद्ध पदार्थ आपका है, कैसे आप दिनचर्या करते हो वो है, कैसे आप अष्टांग लिम्स, 8 लिम्स अष्टांग योग में है पतंजलि महर्षि, उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो, करेक्ट वे में इंप्लीमेंट करते हो, हमेशा स्वाध्याय में रहोगे, लर्निंग मोड में रहोगे, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल अगेन। जो चीजें ना पहले इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, 2 डिकेड्स में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया लाइफ, लास्ट 2 to 3 डिकेड्स में ज्यादा हो गया। क्यों? व्हाई वी कैन नॉट लिव अगेन द बेस कल्चर? हम हमारे खुद के पद्धति लाइफस्टाइल को क्यों नहीं चल सकते? फिर से हम हमारा ऑर्गेनिक लाइफ, खेती बाड़ी जो था पहले का, वो वे में भी क्यों नहीं चल सकते? अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्यों एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके नहीं कर सकता? जॉब चला गया, अरे इसको तो मैं 10 लाख पैकेज बोल के ये लोग बोले थे, इसका औकात नहीं है, छोड़ के चले जाओ, और एक अमीर लड़के को पकड़ो। लड़की का भी रॉन्ग इंटेंट है, लड़के का भी ऐसी बदमाशी है, अरे मुझे और एक बार वही जॉब चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। व्हाई? एक चीज का ट्रेंड खत्म हो गया। सपोज नाउ एआई इज द नेक्स्ट ट्रेंड बाय नेक्स्ट 5 इयर्स। अगर आप नॉर्मल कोडिंग करके जाके इंटरव्यू दोगे, जब वो चीज नहीं है उसमें आपको नौकरी कैसे मिलेगा? जो चीज में रेवेन्यू नहीं है, जिस चीज में इनकम नहीं है, उसमें आपको कैसे मिलेगा? तो आपको वो माता पिता, गुरु, आपका जो अतिथि संस्कार, वो सब चीजें हैं, जो जितना हमारा स्पिरिचुअल क्वालिटीज था, वो सब चीजों को मेंटेन करेंगे, खुद खट के कमाएंगे, खरा कमाई बोलते हैं। मनी का वैल्यू जब समझ में आएगा, ये इजी मनी, सैलरी क्रेडिट से आपका स्ट्रगल लाइफ आपको पता नहीं चला। जब आप अच्छे बुरे में सेविंग नेचर, जो एक मतलब पक्षी का भी वही है कि बारिश से पहले अपने लिए खाना रखता है, तो प्रकृति हमें वो मैसेज, कोई भी पशु नहीं है जो शाम के बाद खाना खाता है, ये एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। कोई भी ना, जो वेजिटेरियन कैटेगरी के एनिमल्स हैं, जो जिनको नॉनवेज देने से भी नहीं खाएंगे, वो चीज हम खा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनका बॉडी ना पूरा नेचर से अलाइंड है, बट वी आर वायोलेटिंग द रूल। तो हमारा इंटेंस्टाइन्स फॉर इजी फूड डाइजेशन के लिए हम उसका एग्नेस्ट जा रहे हैं। बार बार खाने का हमारा कल्चर नहीं है एक्चुअली, खटने के बाद खाना है, एक एक मील में कुछ गैप होना है, प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा खाना। लेकिन हम बार बार ये पैकेट ये वो सब खाते रहेंगे, तो केमिकल चीजें, स्टोरेज फूड, कोई फैक्ट्री का एब्रीवेटेड केमिकल जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब पियेंगे तो दिक्कत करेगा ये बॉडी, क्योंकि वो कब 2 महीना पहले बना था फैक्ट्री में, उसमें केमिकल डाल के, फ्रिज में डाल के, कुछ कुछ करके, होलसेलर से, डीलर से आके, दुकान के आकर फिर हमें आ रहा है। इट विल गिव अस अनइजीनेस। तो स्प्राउट्स खाना है, जो पूरा स्प्राउट्स निकला है, जिसमें बीज में, उसमें प्राण शक्ति है, वो खाना खाएंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मिक्स्ड थिंग खाएंगे, डेफिनेटली आपका लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। और एक्सपेक्टेशन जब घट जाएगा ना, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क। या लोकल इज वोकल, सीजनल फूड, ऋतुचर्या के हिसाब से हम फॉलो करेंगे, वो टॉपिक भी आएगा। तो आई एम डन विद द टॉपिक नाउ, up to you to ask anything. I'm stopping recording.